Hello students. So till last video I explained to you about debtors. So now we are going to study about the from bill receivable. So I told you yesterday that what is bill receivable? It is a written document. It is a written document acknowledge about the debt. ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें डेट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है कि फर्म हैज़ गिवन डेट टू विच पर्सन रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स एंड विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स. Now it is a written document, but it is written on what? Stamp paper. Means एक stamp paper होता है on which all the information is given, like on what date the debtor has taken the amount, what amount he has taken, and he is accepting also. Accepting means he is signing that he will pay the amount at a certified or certain date. So this is called bills receivable, in which an obligation to receive the amount is created on receiver, or you can say the seller of the product. So this is your bills receivable. Next point is prepaid expense. What is the next point? Prepaid expenses. I already told you about what is prepaid expense. So prepaid expense I already told you. Pre means before, paid means pay, means paying amount to someone, and expense. So those expense amount of which is in paid advance. Those expenses amount of which is paid in advance. Those expenses amount of which is paid in advance before using the product, or you can say instead of advance you can use a word amount of which is paid before using the product. Before using the product. So this is your prepaid expense. For example, I already gave you this example that suppose what we are all are doing, we all are recharging our sim. We all have a sim. So if it is a prepaid sim, there are two types of sim, prepaid and postpaid. So if it is a prepaid sim, so in prepaid sim what we have to do, first we have to recharge it, then we can make call or use internet. First we have to make payment, and then we can make a call and use internet. So this is what, this is an example of prepaid. Means you are using the product after payment only, you can't use it before paying the amount. So whenever you are paying, so look what happened here, you are paying the amount before using the product. So if after payment your whatever means you have recharged either for data pack or for uh, net means validity. So if you are not able to still call or use data pack, then what you will do, you will call to customer care. आप क्या करेंगे, कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे, एंड देर यू विल फाइल योर कंप्लेन. देन आप अपनी कंप्लेन लिखाएंगे. सो यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, यू आर फाइलिंग कंप्लेन. वाई? बिकॉज यू हैव राइट, आपके पास अधिकार है. एंड आई टोल्ड यू दोज थिंग्स ऑन विच यू हैव राइट, दैट विल बी योर प्रीपेड एक्सपेंस. वो चीज़ें जिनके ऊपर आपका अधिकार है, दैट इज़ योर प्रीपेड एक्सपेंस. फॉर दिस आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ केक. कि सपोज योर फ्रेंड हैज़ अ बर्थडे and you went to the bakery shop in the morning, and you just said to the shopkeeper that I need a cake at the evening, and return back to home. In this condition, when you will reach to the shop at the evening, suppose if the shopkeeper is denying that, sorry sir, I don't have cake, so would you do anything? No, you can't do anything, because you had just said him that to prepare a cake. You haven't paid any single rupee to him. But instead of this example, if you have paid the amount in the morning only, when you ordered the cake, if the amount is paid at the same time only, and then you will reach to the shop at the evening, and if he deny, then you can file a case against him. और फिर आप ज़रूर एक्शन लोगे कि आपने मॉर्निंग में ही अमाउंट पे कर दिया है और आप शाम को जा रहे हैं केक लेने, बट अगर फिर भी वो मना करता है, देन डेफिनेटली यू विल फाइल अ केस अगेंस्ट हिम, और आप खुद भी चार गालियाँ या कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर बोलेंगे. Why you are saying all these things? Because this time you have already paid the expense, and whenever we are already paying the expense, that will be treated as an asset. उसे क्या माना जाता है? Asset. So prepaid expense is also an
asset. I hope it is also clear. Moving towards the next point, that is accrued income. That is accrued income. So what is accrued income? Means such kind of income in return of which we have done all the work but we haven't received the benefit. Means work is already done by you but you haven't received its benefit. आपने काम पूरा कर दिया है बट उसके बदले में जो भी आपको रिसीव होना था वो रिसीव नहीं हुआ है. तो such kind of income is called accrued income. And why it is an asset? Why it is an asset? Because here also you have a right to ask for your money. Suppose you worked for the whole month in a company, कि आपने किसी कंपनी में पूरे मंथ काम किया है एंड एट द टाइम ऑफ सैलरी यू डिडंट रिसीव्ड इट, आपको सैलरी नहीं मिली. सो व्हाट यू विल डू इन दैट केस? आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? डेफिनेटली यू विल गो टू द ओनर और द अकाउंट्स पर्सन एंड आस्क फॉर योर सैलरी. एंड इफ़ ही सेज कि सॉरी सर, ड्यू टू सम रीज़न वी आर नॉट एबल टू पे योर सैलरी दिस टाइम, आफ्टर फ्यू डेज और सर्टेन डेट आई विल पे योर मनी टू यू. देन आप वेट करेंगे, कोई बात नहीं, बट at that date you will again reach to the firm, and if they are again denying, then you can take some action against them. तब आप उनके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं. why you can take action? because you have right at this place also. यहाँ भी आपका अधिकार है. and I told you the things on which you have right, that will be your asset. वो क्या होंगी? आपकी assets. so accrued income is also an asset. Accrued income is also an asset. So these were the few examples of assets. Last one is, now we are moving toward the third type of asset, that is fictitious assets. Third type of asset is fictitious assets. So fictitious assets, in reality they are not assets. In reality they are not assets. You can say what? Those losses or expenditures, benefit of which cannot be received in 1 year, are called as fictitious assets. Means those losses or expenditure. In reality, what are fictitious assets? They are either losses or expenditure. In reality, fictitious assets are either losses or expenditure, benefit of which is not or cannot be received in 1 year. कि जिसका benefit आपको 1 year में receive नहीं हुआ, फ्यूचर में भी होगा, that will be treated as an fictitious assets. कि suppose you have done an advertisement, आपने क्या किया? एडवर्टीजमेंट किया. तो एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस. एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस. सो इंस्टेड ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, क्या ऐसा कंफर्म है कि एडवर्टीजमेंट से जितने भी लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा होगा वो एक ही दिन में पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को परचेज करने आ जाएंगे? नो, देयर इज नथिंग लाइक दिस. पीपल आर कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो. आपने भी अगर बहुत सी चीज़ें फेमस होती हैं, लाइक अगर आपसे बोला जाए ड्यू की अगर टैगलाइन बोली जाए थम्सअप, या थम्सअप की टैगलाइन बोली जाए थम्सअप, तो आप में से बहुत से लोगों का रिप्लाई आ जाएगा टेक्स द थंडर. सो व्हाट दिस मीन्स कि एडवर्टीजमेंट का हमारे ऊपर गहरा इम्पैक्ट पड़ता है और एडवर्टीजमेंट जो है वही हमें मोटिवेट करता है फॉर परचेजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? तो देखिए, अब एडवर्टीजमेंट हमने आज देखा प्रोडक्ट का, तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम आज ही पहुंच जाएं. ज़रूरी नहीं हम प्रोडक्ट को परचेज़ करने आज की डेट में पहुंच जाएंगे. होता है बहुत से लोग लेट डिसीजन भी करते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि वेन एवर आई विल नीड इट एट दैट टाइम आई विल परचेज दिस प्रोडक्ट ओनली. कि जब भी मुझे इस टाइप के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसी कंपनी का और यही वाला प्रोडक्ट परचेज़ करूँगा. तो एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा हो गया दैट इज़ अ काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स. बिकॉज देखिए इस या फिर यू कैन यूज़ अनदर वर्ड, इट इज़ सिमिलर टू, यू कैन से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल्सो. अभी आगे बताएंगे क्या होता है. चलिए, सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ liabilities. Next point is liabilities we are going to discuss. So what are liabilities? Amount owed by a firm means whatever amount of firm is owed from outsider
or inside anyone, कि जो भी फर्म ने उधार लिया हुआ है that is liability for that firm, that is liability for that firm. So liability is what? Amount owed by a firm, कि अगर किसी फर्म ने किसी से उधार लिया है that will be the liability. In other word you can say कि whenever we are taking liability our tension is automatically created on us, एक tension create हो जाती है और responsibility is created on us. So after reading the line, whenever you are feeling that a responsibility or tension thing is created on us, that means it is a liability, that means it is a liability. So always keep it in your mind. So liability is what? Amount owed by a firm. Amount owed by a firm means amount जो कि एक firm ने उधार लिया है, that is your liabilities. Next, liabilities also have three types. First one is non-current liability, non-current liability. Second one is current liability. First one is non-current liability, second one is current liability, and third one is contingent liability. Third one is contingent liability. So these are the three types of liability which we have. These are the three types of liability which we have basically. Now they are also divided into other parts, like non-current liability means what? First of all, non-current liability means those liability which we, for paying the amount of which we will take more than 1 year. Suppose for paying the amount of a certain product we are taking more than 1 year, it means that is our non-current liability, means those liability which is द ऑब्लिगेशन टू पे द अमाउंट फॉर विच इज़ मोर देन 1 year, कि जिनको पे करने का ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर 1 साल से ज़्यादा रहता है, वो क्या है? हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, या कह लीजिए वो लायबिलिटी जिनको पे करने में हम 1 साल से ज़्यादा का समय ले जाते हैं, दैट विल बी आर नॉन करंट लायबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक लोन, कि सो मैनी पीपल्स आर टेकिंग होम लोन्स, बहुत सारे लोग हैं जो कि होम लोन लिया करते हैं. तो सपोज दे हैव टेकन अ लोन ऑफ रुपी 1 करोड़, 1 करोड़. So in this case, and assume the salary of the person is rupee 1 lakh per month. Salary is 1 lakh per month. So in this case, if the person try to pay the whole amount, then how much time he, if suppose he is not consuming a single rupee, ऐसा जबकि होता नहीं है in real life. Suppose he is not consuming a single rupee. In that case, also if he will save the whole month for the year, then he can save only 12 lakh rupees. And for paying this 1 crore, at least he will take around 8 years, at least 8 point something, 8 point something years he will take. So it means it is an example of non-current liability. It is an example of non-current liability. Moving towards the next point, that is current liability. Next point is current liability. So the liability, the obligation of which is remain with us for less than 1 year, the obligation to pay the amount of which is on us for less than 1 year, means वो liabilities जिनको पे करने का जो दायित्व होता है हमारे ऊपर, वो 1 साल या उससे कम समय के लिए ही रहता है, तो उनको हम करंट liabilities कहते हैं. आप कह लीजिए आप दूसरे शब्दों में कि वो liabilities जिनको हम विद इन 1 year पे कर देते हैं, दैट इज़ आर करंट liability, एंड वो liabilities जिनको हम विद इन 1 year पे नहीं कर पाते, दैट इज़ आर नॉन करंट liability. Current liability includes examples like creditors, bills payable. If देखिए यहाँ पे मैंने लोन का, इफ नथिंग इज मेंशन विद लोन देन इट विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म. इफ नथिंग इज ट्रीटेड विद मेंशन विद लोन देन इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म. बट अगर यहाँ पे लिख दिया जाए शॉर्ट टर्म लोन, देन इट विल बी ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी. So if loan is only mentioned, then it is a non-current, and if short-term loan word is mentioned, then it will be the part of current liability. So creditors, bills payable, bank overdraft. Apart from this, outstanding expenses like advance income, you can say advance income, or you can use a word income received in advance. So all are the few examples of current liability. All these points are few examples of current liabilities. First thing is creditor. What is creditor? So creditor means the amount which is owed by the firm from outside. It means I'm saying it similar as
liability, for liability also I said the same thing. Means creditor क्या है, if you are taking a short term amount from your suppliers, अगर आप कम समय के लिए, जैसे कि आपकी शॉप है या फैक्ट्री है, सो देयर विल डेफिनेटली बी अ सप्लायर हु विल सप्लाई रॉ मटेरियल टू यू. सो सप्लायर से हम जनरली कुछ टाइम के लिए उधार ले लेते हैं, सो दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर्स. तो जो अमाउंट लिया जाएगा वो क्रेडिट पे लिया जाएगा, और जिस पर्सन से लिया गया है वो कौन होता है, क्रेडिटर. सो देखिए, फर्म इफ फर्म इज गिविंग क्रेडिट, देन अगर फर्म क्रेडिट दे रही है तो फर्म के डेटर्स क्रिएट होते हैं. इफ़ फर्म इज़ टेकिंग क्रेडिट, इफ फर्म इज़ टेकिंग क्रेडिट, यदि फर्म उधार ले रही है तो फर्म के क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं. कीप इट इन माइंड. नेक्स्ट थिंग इज बिल्स पेबल. बिल्स पेबल, so as I told you about bills receivable, that it is a written document acknowledge about the debt, जो कि हमें डेट के बारे में बताता है कि कंपनी को किससे पैसा उधार कंपनी ने किसको दे रखा है जिससे रिकवर करना है, और ये रिसीव्ड होता है किसके द्वारा, किससे रिसीव होता है, डेटर्स से. सो सिमिलरली देयर इज अ बिल्स पेबल ऑल्सो. ऐसा ही बिल्स पेबल भी है, इसका जस्ट अपोजिट. मीन्स हेयर वी आर टॉकिंग फ्रॉम द सेंस ऑफ द रिसीवर, जबकि यहाँ पे हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फ्रॉम द पर्सन हु हैज़ टू पे द अमाउंट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं. तो देखिए, फॉर the person who has to receive the amount of bill, it is a bills receivable, but the person who has to pay the amount of bill, for him we will use a word that is bills payable. जिसको बिल की पेमेंट करनी है, that will be means जो एक्सेप्ट करता है, for him it is a bills payable, and the person who has to receive the amount of this one, for whom it is a bills receivable. जिसको बिल की अमाउंट रिसीव करनी है उसके लिए रिसीवेबल है, and the person who has to pay the amount of bill, for him इट इज़ अ बिल्स रिसीवेबल. तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था, बिल्स पेबल. आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट, जनरली दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल फॉर करंट अकाउंट होल्डर्स. आमतौर पर यह फैसिलिटी केवल करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए ही अवेलेबल होती है. बट व्हाट इट बेसिकली मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स अ कंडीशन इन विच you can withdraw more than the amount available in your account. Bank overdraft is a condition in which you can withdraw more than the fund available in your account. Suppose your account has only 7,000, still you can withdraw 17,000. आपके अकाउंट में पैसा कितना है, 7, बट आप फिर भी कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, 17,000. सो दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 10,000 विल बी ट्रीटेड एज बैंक ओवरड्राफ्ट. ये जो एक्स्ट्रा आपने 10,000 विड्रॉ किया है, इट विल बी ट्रीटेड एज bank overdraft. Next thing is outstanding expense. This thing I also told you, means expense the amount of which is not yet paid. Means benefit has been received but the amount has not been paid. benefit तो receive कर लिया है but उसका amount अभी तक पे नहीं किया है. such kind of expenses are called as outstanding expense. कि those expenses the benefit of which has been received but the amount has not been paid. कि वो एक्सपेंस जिनका बेनिफिट रिसीव कर लिया है बट उनका अमाउंट पे नहीं किया है, तो उन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाएगा. आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ अ पोस्ट पेड सिम और पोस्ट पेड कनेक्शन. कि इन last example we talk about prepaid sim, here we are talking about postpaid. So what happens with postpaid sim, first you will use the sim, means आपको जितनी कॉल जितना डाटा यूज़ करना यू कैन, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, मीन्स आफ्टर 1 मंथ यू विल गेट द बिल. आपके पास बिल आ जाएगा कि यू हैव यूज दिस मच अमाउंट ऑफ सर्विसेज, कि आपने इतने अमाउंट की सर्विसेज को यूज़ किया. तो इट मीन्स व्हाट, कि वी आर यूजिंग द सर्विस, आफ्टर दैट वी विल पे द अमाउंट. सो दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. मीन्स बेनिफिट तो यूज़ कर लिया है, सर्विस तो हमने यूज़ कर ली है, बट वी हैवंट पेड द अमाउंट. सेम इज फाउंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑल्सो. कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में होता है कि फर्स्ट यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द होल मंथ एंड आफ्टर दैट अगेन अ बिल केम टू योर हाउस, कि आपके घर पे एक बिल आ जाता है. दैट मीन्स व्हाट, कि इट इज़ ऑल्सो अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. की और फिर देखो इनके आते ही हमारे ऊपर टेंशन भी हो जाती है. आई टोल्ड यू कि लाइबिलिटी के लिए हम टेंशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं. कि टेंशन क्या हो जाती है, कि वी विल नॉट पे दिस अमाउंट, अगर हम ये अमाउंट पे नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, देन आर इलेक्ट्रिसिटी विल गेट डिसकनेक्टेड. तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा या कट कर दिया जाएगा. सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ लाइबिलिटी.
next point is advance income. Means you are getting the income without providing the services. आपको पैसा काम करने से पहले ही मिल रहा है. You are getting the income without providing the services. काम करने से पहले ही आपको पैसा मिल रहा है, तो that is your advance income. तो उसे क्या कहेंगे हम? advance income. और you can use a word income received in advance. income received in advance you can use. So what is advance income or income received in advance? कि for example कि like I told you about the cake example. So second point what I said, second condition में क्या कहा था? In second condition I said that कि you reach to the bakery shop and you paid the amount also in the morning. आपने amount morning में पे कर दिया है. So in that case the shopkeeper also has the responsibility to make the cake ready till the evening. शॉपकीपर के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि उसे केक को शाम तक रेडी करके रखना ही रखना है. इफ़ ही विल नॉट बी एबल टू डू दिस देन डेफिनेटली ही हैज़ टू पे सम फाइन और ही विल हैव टू सफ़र इन सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. तो ये है आपका एडवांस इनकम कि काम करने से पहले ही पैसा मिल जाता है, तो टेंशन हो जाती है कि अमाउंट पे करना ही करना है. सो मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टाइप, दैट इज़ कंटिंजेंट लायबिलिटी. दैट इज़ contingent liability. So the liabilities amount of which and the time period to pay back is not certain. The liability, the amount of which and the time period to pay is not certain. कितना अमाउंट पे करना है, किस टाइम पे करना है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जब हमें नहीं पता होती तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंटिंजेंट लायबिलिटी. या कह लीजिए अन्य शब्दों में कि वो लायबिलिटी जो अचानक से हमारे सामने क्रिएट हो जाए, अचानक से हमारे सामने उत्पन्न हो जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज कंटिंजेंट लायबिलिटीज. दोज लायबिलिटी विच इज़ कम्स इन फ्रंट ऑफ अस सडनली, कि अचानक से होता है ना कि हम कोई काम कर रहे हैं, एकदम से कहीं से फ़ोन आया कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई. सो इट मीन्स हमें वहाँ फिर पेमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर करनी पड़ेगी. तो उस टाइप की लायबिलिटी को क्या कहते हैं हम? कंटिंजेंट लायबिलिटी. एंड जनरली उस टाइप की लायबिलिटीज़ का अमाउंट सर्टेन नहीं होता है. जनरली उन टाइप की लायबिलिटीज़ का जो अमाउंट होता है वो सर्टेन नहीं होता है, तो इसलिए इसे मतलब अनसर्टेन भी कह सकते हैं कि जिनकी अमाउंट सर्टेन ना हो, या फिर कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ भी इन्हें कहते हैं. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज so we have completed assets, liability and capital. So now we are going to study about the income, you can say. So income is what? After selling the product, whatever amount you are receiving, that is your profit. After selling the product, whatever extra amount you are receiving, extra amount I'm saying कि whatever extra amount you are receiving, that is your profit. But here we are talking about income. So income means after selling the product, whatever amount you are receiving, after selling the product, whatever amount you are receiving, that will be your income. कि प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो भी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, चाहे 100 रुपये चाहे 200 रुपये, जितना भी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा आपका? दैट विल बी कॉल्ड एज इनकम. जितना भी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं वो क्या है? इनकम. प्रॉफिट क्या होता है कि देखिए, प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जितना आप अर्न कर रहे हैं, सपोज़ एक प्रोडक्ट आपने बनाया, उसकी कॉस्ट पड़ी आपको 70 रुपीज़ एंड यू आर सेलिंग दैट इनटू 100. So this is cost price, this is your sales price. So the difference between them is called as profit. इन दोनों का जो difference, so the difference will be called as income. Means the difference is 30, that will be your profit. Sorry, not income, that will be your profit. So profit is fixed कि excess of income over expenditure, excess of income over expenditure, कि इनकम का एक्सपेंडिचर से जितना भी ज़्यादा हमें रिसीव होता है वो क्या कहलाता है? हमारा प्रॉफिट. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. सो दिस 100 इज़ योर इनकम. ये 100 जो रिसीव हुई है आपकी, दिस इज़ योर इनकम. एंड दिस 70 इज़ योर कॉस्ट. कॉस्ट मीन्स अमाउंट और एक्सपेंस, अमाउंट और यू कैन यूज़ अ वर्ड एक्सपेंस इनकर्ड. इनकर्ड मीन्स लगना. फॉर प्रोड्यूसिंग अ कॉमोडिटी, फॉर प्रोड्यूसिंग अ कॉमोडिटी, किसी सामान को बनाने में जो पैसा लगा है, जितना पैसा खर्च हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड एज
कॉस्ट। किसी भी सामान को बनाने में जितना पैसा खर्च हुआ है वो क्या है, हमारी कॉस्ट। बनाने के बाद जितने में हमने सेल किया है, सेल करके जो पैसा मिला दैट विल बी इनकम, और जो डिफरेंस हुआ है वो दैट इज़ आर प्रॉफिट। जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारा प्रॉफिट। सो जनरली इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग, और यू कैन से yes, you can use the word operating activities. Operating activities means those activities which we are doing on regular basis, or which is our basic activity, which is our basic activity कि जो हमारा मेन काम है उससे जो पैसा हमें मिलता है that is our income. But apart from operating activity, there are so many people who are doing some other activities also. Apart from operating activity, there are so many people who are doing some other activities also. So in that case, ऑपरेटिंग इनकम मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा मिल रहा है वो ऑपरेटिंग इनकम हो गई, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम मीन्स जो आप मेन काम नहीं कर रहे, मेन काम के अलावा अगर आपके पास और कहीं से पैसा आ रहा है, सो द टोटल ऑफ ऑल दीज टू बिकम्स विल बी योर रेवेन्यू। इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू। मीन्स इनकम इज़ अ नैरो टर्म, रेवेन्यू इज़ अ वाइडर टर्म। बिकॉज देखिए इनकम का जो पार्ट है वो इसमें भी इन्वॉल्व है, और बहुत से लोगों की इनकम और रेवेन्यू सेम होती है बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर you can say depend on one single activity only. So this is your income and revenue. Next thing is expenditure and expense. So expenditure is what? Amount spent for acquiring a product. Amount spent for acquiring a product, कि किसी प्रोडक्ट को खरीदने पे आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, अमाउंट स्पेंड फॉर एक्वायरिंग अ प्रोडक्ट, कि आप किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने पे जितना पैसा खर्च कर रहे हैं दैट विल बी योर एक्सपेंडिचर। वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सपेंडिचर। वाइल द नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंसेस। नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंसेस। व्हाट आर एक्सपेंसेस? अमाउंट विच इज़ पेड फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, कि इनकम जनरेट करने के लिए या एक्स्ट्रा पैसा जनरेट करने के लिए जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं दैट इज़ आर एक्सपेंस। कि सपोज वी आर पेइंग रेंट, हम रेंट पे करते हैं तो रेंट पेड इज़ एन एक्सपेंस। रेंट पेड इज़ एन एक्सपेंस। वाई इट इज़ एन एक्सपेंस? बिकॉज देखिए हम रेंट क्यों पे कर रहे हैं, बिकॉज हमने एक एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है तो उस एरिया का हम रेंट पे करते हैं, पूरे एरिया का। सो ये एरिया क्यों ऑक्यूपाई किया है? बिकॉज हेयर वी आर डूइंग आर प्रोडक्शन एक्टिविटी और वॉट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग, कि यहाँ पे हम अपने कार्यों को करते हैं, एंड बाय डूइंग दोज एक्टिविटीज़ वी आर गेटिंग द प्रोडक्शन, एंड आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्शन वी आर गेटिंग द इनकम। तो एक्सपेंस जनरली है क्या, इनकम अर्न करने के लिए जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं दैट इज़ एक्सपेंस। यहाँ भी पैसा खर्च हो रहा है, यहाँ भी पैसा खर्च हो रहा है, बट हेयर वी आर स्पेंडिंग द मनी फॉर एक्वायरिंग द प्रोडक्ट और एसेट। ये चीज़ों को खरीदने के लिए खर्च कर रहे हैं, और यहाँ पे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, सैलरी पेड। वाई वी आर पेइंग सैलरी? बिकॉज वर्कर्स आर वर्किंग फॉर अस, बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग फॉर अस, एंड आफ्टर देयर एम्प्लॉयमेंट, उनकी एम्प्लॉयमेंट करने के बाद वी आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम देम, हमें उनसे बेनिफिट मिल रहा है। इट दैट्स वाई सैलरी पेड इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस। आई होप बोथ द थिंग्स आर क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल आपको जो पहले भी दे चुका हूँ वो दे कर लेते हैं,